Hello students, welcome you all to our second session of our chapter number 3, that is atoms and molecules. Students, in the previous session we discussed two important laws of chemical combination, that is law of conservation of mass and law of constant proportion. We even discussed Dalton's atomic theory. Now let us further discuss some more topics of this chapter. Let us explore the atomic world. Okay students? Students, have you ever observed a mason building walls? From these walls, a room and then a collection of rooms to form a building. Have you ever seen a mason? Who is a mason? One who builds our house. He is called a mason. है ना? He uses a brick, okay, to construct the walls. उससे room बनता है, room से पूरा घर बनता है. Okay, so for building a house, for a building a big building also, you need blocks. Okay, bricks लगाते हैं उसमें. Okay, similarly एक ant है. Okay, it builds its house. Okay, how? By taking small particles. Okay, in the similar manner, the matter is formed up of what? Smaller particles called atoms. Atoms are the building blocks of matter. Atoms जुड़ के क्या बनाते हैं? हमारा matter बनाते हैं. Atoms are indivisible particles that cannot be destroyed or created by any chemical means. ये हमने देखा था ना Dalton's atomic theory. According to Dalton's atomic theory, all matter is made up of tiny particles called atoms. This would mean that a rod of iron is made up of millions of atoms of iron. Okay, so in this way we have seen that atom is the basic particle of any matter. So let us discuss regarding the size of an atom. Okay, atom कितने size का है? The atoms are very small in size. They are extremely smaller in size. They are not visible even under a powerful optical microscope. नॉर्मल माइक्रोस्कोप तो छोड़ दो, पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में से भी आप एटम्स को, एक सिंगल एटम को आप नहीं देख सकते. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय द हाउ डू यू डिफाइन द साइज ऑफ एन एटम? साइज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द एटम. इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द रेडियस ऑफ एटम कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस. ओके, उसके न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. एंड दिस साइज ऑफ एन एटम इज ऑफनली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स. क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड नैनोमीटर्स. एंड व्हाट इज 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर इज 1/10⁹ मीटर. 1/10⁹ मीटर, और नीचे वाला 10⁹ को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर. सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन 1 नैनोमीटर इज व्हाट? 10⁻⁹ मीटर. आप देख सकते हैं -9 मतलब कितना छोटा होता है. सो द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. It is measured in nanometers. And what is 1 nanometer? 1 nanometer is 1/10⁹ meter, that is 10⁻⁹ मीटर. जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो वो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा. Okay students, see here, repeating again the same thing, that atoms are the smallest particles. Their size is extremely small, so it is measured in nanometers, nm. एंड 1 नैनोमीटर मैंने आपको क्या बताया? 10⁻⁹ मीटर. अगर आपको नैनोमीटर से मीटर में जाना हो तो 10⁻⁹ मीटर. लेकिन मीटर से नैनोमीटर जाना हो, बड़े में से छोटे यूनिट में, देन 1 मीटर विल बी हाउ मच? 10⁻+9 नैनोमीटर. ओके, मीटर से नैनोमीटर में जाना हो तो +9 हो जाएगा, 10⁻+9 नैनोमीटर. ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, 1 नैनोमीटर इज 10⁻�9 मीटर. But if 1 meter is what? It is 10⁻+9 nanometer. Okay, अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो इट इज़ ऑन पेज नंबर 33 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, जो टेबल बना हुआ है. ओके, यू कैन सी द साइजेस गिवन इन द टेक्स्ट बुक. द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के एटम का जो रेडियस है, वो साइज है, वो कितना है? 10⁻⁻10 मीटर है. 10⁻⁻10 मीटर हम मीटर में दे रहे हैं. जैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का साइज है 10⁻⁹ मीटर. उस टेबल में से रीड कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में से. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन किस में होता है? हमारे ब्लड में होता है. इट इज़ 10⁻⁻8 मीटर. अ ग्रेन ऑफ सैंड पता है ना, रेती, उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻4 मीटर. साइज ऑफ एन एंट पता है ना, चींटियाँ जो होती है, इट इज़ 10⁻⁻3 मीटर. And the size of an apple, it is 10⁻⁻1 meter.
ओके, इन दिस वे वी हैव सीन द रिलेटिव साइजेस। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो एटम ऑफ मॉलिक्यूल, एटम ऑफ हाइड्रोजन या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया हमने, वो कितने छोटे छोटे, देखो हाइड्रोजन का एटम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कितना छोटा हो गया। ओके, now students, let us see what are the modern day symbols of atoms or different elements. Okay, representation of atoms. Atoms को कैसे हम symbolize करते हैं? तो actually Dalton was the first scientist to use symbols to represent different elements. अलग अलग elements को represent करने के लिए डाल्टन ने कुछ symbols दिए थे। Every symbol he proposed also represented a definite quantity of the respective symbol element. मतलब ये जो symbol आप देखोगे ना, तो वो symbol उस element का नाम भी बताएगा, साथ साथ में उसकी quantity भी बताएगा। The symbols of some common elements are proposed by Dalton are shown in this figure. आप ये figure आप पिक में भी देख सकते हो, स्क्रीन में भी। If you want to see it clearly, you can see in page number 33. पेज नंबर 33 में लास्ट में डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल देखो कैसे दिए थे। कैन यू सी द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का सिंबल कैसा है? सर्कल के अंदर डार्क डॉट। ओके, देन कार्बन, कार्बन का सिंबल कैसा है? सर्कल के अंदर शेडिंग। देन ऑक्सीजन, सिंपल सर्कल। देन फॉस्फोरस, सर्कल के अंदर देख सकते हैं कैसे 3 लाइन्स बने हुए हैं। ओके, देन सल्फर, सर्कल के अंदर प्लस। ओके, देन आयरन, सर्कल के अंदर आई। देन कॉपर, सर्कल के अंदर सी। लेड, सर्कल के अंदर एल। सिल्वर, सर्कल के अंदर एस। नाउ सी गोल्ड, सर्कल के अंदर खाली जी नहीं है, अंदर देखो कैसे डिजाइन बनाया हुआ है। तो दिस वाज द सिंबल गिवन बाय डाल्टन फॉर गोल्ड। देन प्लैटिना, सर्कल के अंदर पी। देन मर्क्यूरी। ओके, इन दिस वे दीज आर द सिंबल्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। दीज सिंबल्स वे प्रपोज्ड बाय हिम इनिशियली। अभी ये सिंबल्स यूज नहीं करते हम लोग। सो अगर एग्जाम में आता है ना कि गिव द सिंबल ऑफ सिल्वर या गिव द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, तो आपको ये सिंबल देना पड़ेगा आपको। ओके, डाल्टन ने कौन सा सिंबल दिया था? ओके स्टूडेंट्स, तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। लेकिन उसके बाद डाल्टन के बाद कौन आए थे? अनदर साइंटिस्ट, बर्जीलियस। बर्जीलियस भी ऑल्सो केम, ही ऑल्सो गेव द सिंबल्स। अभी बर्जीलियस ने क्या क्या सिंबल दिए वो हम देख लेते हैं। दीज वेर द सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन, जो हम इनिशियली यूज करते थे। नाउ दीज सिंबल्स आर नॉट यूज्ड। Another scientist came called Berzelius, who suggested that the symbols of element be made from 1 or 2 letters of the name of the element. Berzelius जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि एटम के सिंबल्स जो है ना, उनके नाम का फर्स्ट लेटर या उनके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स ऐसे कुछ यूज करके सिंबल देने का है। तो लेट अस सी द सिंबल्स। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। विच साइंटिस्ट टोल्ड? बर्जीलियस। ओके, टेक्स्ट बुक में ये नाम है, पेज नंबर 33 के लास्ट पैराग्राफ में ना। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। ओके, अगर एक ही लेटर यूज कर रहे हैं तो हम कैपिटल यूज करते हैं, बट इफ यू आर यूजिंग द 2 लेटर देन द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल लेटर। ओके, अगर हम 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं उस एलिमेंट का नाम के लिए, सिंबल के लिए, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। जैसे देखो सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। ओके, देन कम्स आर्गॉन, आर्गॉन का सिंबल क्या है? Ar। देन बेरियम, बेरियम का सिंबल है Ba। देन बोरॉन, बोरॉन सिंबल इज B। देन ब्रोमीन, ब्रोमीन सिंबल इज Br। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca, C कैपिटल एंड A स्मॉल, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकेंड लेटर स्मॉल। कार्बन, ओनली कार्बन, इट्स सिंबल इज C। देन क्लोरीन, क्लोरीन का भी देखो CH भी नहीं है, Cl है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट। ओके, क्लोरीन इज Cl। क्लोरीन के बाद एक और नाम नीचे है, इट इज़ कोबाल्ट। यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34, टेबल 3.1 यू हैव टू डू। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू हैव टू लर्न दिस टेबल। ओके, इस चैप्टर में जितने भी टेबल्स है सारे टेबल आपको लर्न करने के, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो। ओके, द लास्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो इज कोबाल्ट एंड इट्स सिंबल इज CO। नाउ सेकेंड रो पे आ जाते हैं, कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। ओके, Cu क्यों है? कॉपर के नाम में तो U तो है ही नहीं, तो क्यों है? क्योंकि कॉपर का है ना, हम लोग उसका नेमिंग उसके लैटिन नेम से करते हैं। किससे करते हैं? लैटिन नेम। लैटिन इज अ लैंग्वेज, लैटिन इज अ लैंग्वेज। तो कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम। आप स्टूडेंट्स लिख लो टेक्स्ट बुक में ही, कॉपर के नाम के बाजू में टेक्स्ट बुक में टेबल में लिख लो क्यूप्रम, CUPRUM। तो
तो क्यूप्रम के कारण उसका सिंबल क्या बन गया, Cu। ओके, देन कम्स फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल F, वेरी इजी। बट गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au, एंड वाई इट इज Au, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज ऑरम, AURUM, द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज ऑरम, सो इट्स सिंबल इज Au। स्टूडेंट्स आप टेक्स्ट बुक में ये नाम लिख लेना गोल्ड के बाजू में। ओके, देन कम्स हाइड्रोजन, सिंपल सिंबल है H, आयोडीन I, आयरन, नाउ कम्स आयरन, आयरन का I नहीं है, आयरन इसका जो सिंबल है उसके लैटिन नेम से जाना जाता है, सो द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम, FERRUM, FERRUM, फेरम। वंस अगेन स्पेलिंग स्टूडेंट्स, FERRUM, है ना, उस फेरम में से इसका सिंबल बन गया Fe, सो द सिंबल फॉर आयरन इज Fe। देन लेड, द लैटिन नेम ऑफ लेड इज प्लम्बम, PLUMBUM, 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 so its symbol is PB, PB। okay, then comes magnesium, मैग्नीशियम का तो Mg, फर्स्ट और थर्ड लेटर। मैग्नीशियम के नीचे एक और एलिमेंट है नियॉन, नियॉन का सिंबल है Ne। ओके, नाउ थर्ड रो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंबल इज N, ऑक्सीजन इट्स सिंबल इज O, वेरी इजी। नाउ कम्स पोटेशियम, पोटेशियम का जो सिंबल है उसके लैटिन नेम से जाना जाता है, एंड इट्स लैटिन नेम इज कैलियम, KALIUM, KALIUM, कैलियम। ओके, उसके लिए पोटेशियम का सिंबल है K। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज SI, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स। सिल्वर, अब सिल्वर को भी SI नहीं कर देना, SI इज फॉर सिलिकॉन। ओके, सिल्वर का जो सिंबल है इट इज गिवन बाय इट्स लैटिन नेम अर्जेंटिनम, अर्जेंटिनम, ARGENTINUM। once again students, ARGENTINUM, it is argentinum, so its symbol is Ag from argentinum। then comes sodium, सोडियम का भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, सोडियम का भी उसका लैटिन नेम से जाना जाता है, सोडियम्स लैटिन नेम इज नाट्रियम, NATRIUM, NATRIUM, नाट्रियम, सो इसका सिंबल है Na, सोडियम सिंबल इज Na। देन सल्फर, सल्फर सिंबल इज S। देन यूरेनियम, इट सिंबल इज U, और एक लास्ट एलिमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, इट इज जिंक, एंड जिंक सिंबल इज Zn। So students, page number 34 of your textbook, table 3.1, you have to learn this table, very very important। Okay students, our next topic is atomic mass। what atomic mass मतलब एटम का मास, एटम कितना भारी है। okay, since atoms are very small in size, its mass is very small, and determining its mass is very difficult because atoms are very smaller in size, so उसका मास भी बहुत कम होगा। तो इतना कम मास को हम कैसे डिटरमिन, कैसे फाइंड आउट करें। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ स्टैंडर्ड एटम। किसी भी एटम के मास को एक स्टैंडर्ड एटम के मास से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, एंड किसको हमने एक स्टैंडर्ड एटम माना हुआ है, तो वी हैव कंसिडर्ड कार्बन, कार्बन का एक हमने आइसोटोप लिया है C12। ओके, कार्बन का एक आइसोटोप लिया है C12। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, ये सब आपको बाद में आएगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ओके, कार्बन का हमने एक आइसोटोप लिया है C12, उसको हमने एक स्टैंडर्ड एटम माना है। ओके, और उस कार्बन C12 का एटॉमिक मास कितना है, 12 यूनिट्स। उसका एटॉमिक मास क्या है, 12 यूनिट्स। एक्चुअली एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ओके, एटॉमिक मास को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो इस AMU को बहुत बड़ा है, उसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, U। ओके, तो U इज़ फॉर व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, शॉर्ट में U लिखते हैं। तो कार्बन 12 C12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 यूनिट से। कितना यूनिट से, 12 यूनिट्स। तो इस 12 को मैं 1/12 पार्ट करूँ, मैं 12 का कौन सा पार्ट करूँ मैं, 1/12। इस 12 को 1/12 से तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 12 कट जाएगा। सो व्हाट विल बी रिमेनिंग, 1 यूनिट। So how will you define one atomic mass unit? One atomic mass unit is the mass of 1/12 the mass of a carbon 12 atom। क्योंकि कार्बन 12 एटम का मास कितना है, 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स का 1/12 पार्ट करो, 12 यूनिट्स को 1/12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 कट, तो यू विल गेट 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास का डेफिनेशन।
The average mass of one atom of the element, the average mass of one atom of an element compared with 1/12th the mass of a carbon 12 atom. ओके, कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका अगर आप 1/12 करो, 1/12 पार्ट करो, ओके, तो आपको क्या मिलेगा? 1 एटॉमिक मास मिलेगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12th द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, बाकी सबके एटम्स जो इसके रिलेटिव एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कर लेते हैं. ये जो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज़ टेबल 3.2 इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 35. पेज नंबर 35 पर टेबल 3.2 है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं. व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है? 1. कार्बन का कितना है हम तो जानते हैं 12, इट इज द स्टैंडर्ड. ओके, देन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 यूनिट्स. ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16 यूनिट्स. देन सोडियम एटॉमिक मास इज 23 यूनिट्स. मैग्नीशियम का कितना है? 24. एल्यूमिनियम का 27. देन सल्फर का कितना है? इट इज 32. देन क्लोरीन का कितना है? 35.5. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 35.5 क्यों है ये भी बताएंगे हम लोग. देन कैल्शियम का कितना है? 40. स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मासेस आपको याद रखने के, इतने के तो आप कम से कम याद रख ही लो. अंडरस्टूड? ये जो टेबल में दिए हुए हैं, एग्जाम में एटॉमिक मास कैलकुलेट करना आ सकता है. कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, या कुछ एटॉमिक मासेस या कुछ फाइंड करना हो, मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करना हो, तो ये एटॉमिक मासेस तभी काम आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, बाय दिस वी एंड आवर टुडेज सेशन. ओके, आप लोग सभी लोग टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीड करेंगे. गो थ्रू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इफ़ यू हैव रेफरेंस बुक, गो थ्रू द रेफरेंस बुक ऑल्सो. ओके, and get a clear idea regarding this chapter. This chapter is very very important from your basic point of view of chemistry section, chemistry subject का. जो लोग 10th के बाद साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़. ओके, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है. We will meet with the further topics in the next session. Till then, thank you students.